ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ऑन सेइंग प्लीज लेसन। तो किस तरह से बुरा व्यवहार जिसके लिए कानून किसी भी पनिशमेंट की इजाजत नहीं देता, ना ही कानून हमें विनम्र होने के लिए विवश कर सकता है और ना ही कानून हमारी इस क्षेत्र में कोई सहायता कर सकता है। But we are bound to endorse the verdict against the liftman. Most people will have a certain sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is social practice much older and more sacred than any law which enjoins us to be evil. चाहे हम में से बहुत से लोगों की सहानुभूति लिफ्टमैन के साथ होगी, लेकिन कोई भी कानून हमें प्लीज कहने के लिए विवश नहीं कर सकता। And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. और सभ्य होने की सबसे पहली शर्त ये है कि जो भी व्यक्ति हमें सर्विस देता है, जो भी हमारे लिए काम करता है, हम उसके लिए थैंकफुल हो जाएं। Please and thank you are small change with which we pave our way as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of our life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation as easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for the asking and have it with the willingness and good feeling instead of resentment. प्लीज और थैंक यू जैसे छोटे छोटे शब्द हैं जो कि हमारी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं और आराम से चलने में हेल्प करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोऑपरेशन करके, सहयोग करके हम अपने व्यवहार को ज़्यादा अच्छा करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं और ये हमारा सामाजिक ही नहीं नैतिक दायित्व भी माना जाता है, क्योंकि इससे हमारे संबंध सुधरते हैं। I should like to feature this in this connection my friend the polite conductor. तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मैं इस संबंध में अपने एक मित्र कंडक्टर की बात बताना चाहता हूँ। By this discriminating title I don't intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductor do. Here or there you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by loud voice and aggressive manner. तो जनरली कंडक्टर्स के बारे में जो हमारे विचार हैं, तो हम किसी एक इस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं जो ये समझता है कि जो भी यात्री उसकी बस में चढ़ा है वो हमेशा ही बिना टिकट लिए, बिना पैसे दिए ही उसको धोखा देकर यात्रा करने वाला व्यक्ति है और जो कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं जो इन सब से अलग है। I fancy the public owes much to the underground railway company which also runs the buses for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care of this standard is observed. In doing this, it is only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. तो इस कंडक्टर की जो बात हम कर रहे हैं ये अपने व्यवहार में बहुत ही अच्छा है और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करने वाला है, जिसके कारण उसकी सर्विसेज सबको पसंद आती हैं। इट इज़ नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर एज ए क्लास दैट आई पे ए ट्रिब्यूट टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास. I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. तो राइटर कह रहा है कि मैं इस कंडक्टर के बारे में मैं तब जानने लगा जब एक दिन मैं बिना पैसों के ही बस में चढ़ गया. Everyone has had the experience and knows the mixed feeling which the discovery arouses. हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि कंडक्टर हमेशा ही
सभी लोगों को इस तरह का समझते हैं कि शायद वो बिना पैसों के ही यात्रा करने वाले हैं। You are an odd because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyes you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick now then of you get. हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हो जाता है कि कोई बिना मनी के बस में चढ़ जाता है तो कंडक्टर का व्यवहार क्या होता है कि उसकी आंखें उसी तरह से भावना शून्य, जैसे कि वो कह रही हूँ, मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई ये तुम्हारा पुराना बहाना है, इसलिए तुम बस से बाहर चले जाओ. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. और अगर ऐसा हो कि कंडक्टर तुम्हें उस बस से उतार दे तो क्या होगा कि तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा और कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा. हो सकता है तुम्हारी बस ट्रेन मिस हो जाए या जो भी काम है तुम्हारा रह जाए. Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face could assume I couldn't pay the fare and must go back for money. तो क्योंकि मैं, राइटर कहता, मैं अपनी पॉकेट्स खंगाल रहा था और देख रहा था कि शायद कोई पैसे हों और मैंने पाया कि मेरे पास कोई मनी नहीं है, तो मैंने कंडक्टर को अपने ईमानदार चेहरे के साथ ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किराया नहीं दे सकता. ओह, यू नीड नॉट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट, ही सेड. ऑल राइट, आई सेड, बट आई हैव ए कॉपर ऑन मी. ओह, आई विल बुक यू थ्रो, ही रिप्लाइड. वेयर डू यू वांट टू गो? और उसने पूछा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टिकट दे देता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है. एंड ही हैंडेड मी ए टिकट फॉर एनीवेयर from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go and gave me ticket. I said, but where shall I send the fare? Oh, you will see someday, all right, he said cheerfully as he turned to go. And then luckily my fingers, still wandering in the corner of my pocket, lighted on a shilling and then account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. तो जैसे ही मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कंडक्टर ने कहा, मुझे जहां तक मुझे जाना था वहां तक का टिकट दे दिया. तो मैंने पूछा कि मैं तुम्हें ये किराया कहाँ चुकाऊंगा, तो कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन देखा जाएगा. और उतने में ही मुझे अपनी पॉकेट से 1 शिलिंग मिली और मैंने उसे वो किराया दे दिया. लेकिन वास्तव में मुझे जो खुशी हुई थी उस कंडक्टर के अच्छे व्यवहार के कारण, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया.